Hello friends, I am Pritham. I welcome you to my YouTube channel, Pritham's Academy, The Educators. Today I have brought a new lesson in geography, second lesson, that is location and extent for 10 standard students. So before beginning with the lesson, I request everybody to subscribe my YouTube channel and enjoy your studies with the help of my videos. So let's begin with the second chapter, that is location and extents. So in the beginning of the lesson, two maps are provided here. One is of India and Brazil. To identify, some clues are provided. So what are the clues for India? The second largest populated country in the world, famous for spices in the world. Cricket is a popular sport here. And clues for Brazil, famous for samba dance, known as the coffee pot of the world. Football is a very popular sport here. So this is very easy to identify the nations. Now before beginning with the latitudinal and longitudinal extension of India and Brazil, I would like to explain this concept of latitudinal and longitudinal extensions. See, now this is the equator of the earth, and the measurement of this equator is 0 degree, and this equator divides the earth into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. And remember, from 0 to northern degree, 0 to the north, top of the north, there are 90 parallels. We call them latitudes, right? And to the south also, there are 90 parallels. So easily we can find out the latitudinal extension of any region on the earth. But this is not enough to find out the exact location of any place on the earth. So we need another imaginary line, that is longitudinal extension. Now you can see here, these are the longitudes. So this longitude also divide the earth into two parts, that is eastern hemisphere and western hemisphere. So longitudes help us to find out the exact location of any place on the earth. Now you can see these latitudes and longitudes form the network. It's a net. This net is called as graticule, and this graticule is very important to find out the exact location of any place on the earth, right? Now you can see the map of India, right? Can we find some imaginary lines on the maps? So from south to north, this extension we can find out with the help of latitudinal extension, and from west to east we can find out the longitudinal extension. So let's begin with the first point, that is name of the country, Republic of India. Name of the capital, New Delhi. Location, extent and boundaries. India is located in the northern and eastern hemispheres of the earth. It is located in the southern part of the Asian continent. So already I told you that equator divides the earth into two parts, northern and southern hemisphere. So India is completely in northern hemisphere, and this longitude 0 degree meridian, we call it prime meridian also, it divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere. So India is completely in eastern hemisphere. So we have to, when we talk about any region, any location, we have to mention its exact hemisphere locations, right? And to the Asian continent, which direction India lies? To the southern part of Asian continent. Now let's see the map. With the help of figure 2.1, find the extent of the mainland India. Fill in the degree values in degrees in blank spaces. Now see the map. Now go to the bottom of the map and you will find the Indian latitudinal extension starts from 8 degree 4 minutes north. It is 8 degree 4 minutes north. And to the top you can see 36 degree. So it is 36 degree 6 minutes north latitudes. Now we have to find longitudinal extension. Now go to the west. From west to east we will find it out, right? So what is the degrees to the west? You can see it easily. It is 68 degree, right? So 68 degrees 7 minute east to 97 degree 25 minutes east. Now you can see visible it is 96 degree, but little ahead we have to go. It is 97 degree 25 minutes. So I can tell you the places also, right? To the bottom it is Kanyakumari, to the top it is Jammu and Kashmir, and to the west it is Gujarat, and to the east it is Arunachal Pradesh. So it is a latitudinal and longitudinal extension of India. Indira Point is the southernmost tip of India. It is located on 6 degree 45 minutes north parallel. So what is the southernmost tip of India? सबसे साउथ में लास्ट प्लेस इंडिया का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट. एंड व्हाट इज इस लोकेशन? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल. तो जो लाइन हमने इक्वेटर का जैसे लाइन निकाला है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स का लाइन है. Observe figure 2.1. Identify the countries
and water bodies around India and complete the table in your notebook. तो टेबल कंप्लीट करना है हमें इंडिया का मैप देखिए। तो टेबल में सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है कि डायरेक्शंस, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन, और सेकंड कॉलम में है नेबरिंग कंट्रीज, सीज, ओशंस। तो चलो ईस्ट साइड लेते हैं हम। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन से ईस्ट में इंडिया के, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, बांग्लादेश है, राइट, बाद में भूटान है, म्यांमार है, राइट। So these countries are to the east. So is there any ocean or sea to the east? Yes. So one sea is there, that is Bay of Bengal, right? Now we have to find out second, that is north. North को कौन से neighboring countries है? It is Afghanistan, China, right? Nearby countries will take. Is there any sea and ocean? No. So there is no sea and ocean to the north. Now to the west. So west, what are the countries to west? We will write Pakistan, right? And is there any sea or ocean to the west? Yes, Arabian Sea. Yes. Last now, that is south. Is there any neighboring countries to the south? Yes, that is Sri Lanka. Any seas and ocean? Yes, Indian Ocean. Sorry. Now name of the country, Federative Republic of Brazil. So what is the capital of Brazil? That is Brasilia. Location, extent and boundaries. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. तो देखो इंडिया के जैसा नहीं है, इंडिया का जो पूरा पार्ट है वो कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में है, लेकिन ब्राज़ील का थोड़ा पार्ट नॉर्दर्न में है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में. ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. हाँ, एक बात पूरी है, जैसे इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो ब्राज़ील कंप्लीटली कौन से हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. और वो जो कॉन्टिनेंट है, कौन से कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कौन से डायरेक्शन में फिर ब्राज़ील, नॉर्दर्न पार्ट में. जैसे इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में, सदर्न पार्ट में, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस मैप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. तो जैसे इंडिया का हमने लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखा है, वैसे ब्राज़ील का भी ढूंढना है हमें. तो क्या इस मैप में देख सकते हैं, with the help of figure 2.2 find the extent of the mainland Brazil, right? Fill in the degree values in blank spaces. So can you tell me the latitudinal extension of Brazil from the map? Yes, so we'll go to the south. It starts from near about, you can see 33 degree, you can see, right? 33 degree. So exact location I will tell you later, but here after 35 it is starting. So 34, 33, from 33 you can take it till to the north. See, it is above 0 degree, so near about 4 degree north, right? So this is latitudinal extension. And longitudinal, so you can see the longitudinal line. So we'll start it from east. For India we started from the west, but for Brazil we have to start from east. Why? Because it lies into the western hemisphere. So you can say exactly 35 degree, isn't it? 35 degree to, now it is 70 now, so we have to go little ahead. So it must be 73 degree, right? So 35 degree west to 73 degree west. So exact number with minutes it is provided here. 37 degree 47 minutes west to 73 degree 48 minutes west longitudes. So this is very easy to identify. Observe figure 2.2. Identify Brazil's neighboring countries and oceans. Fill in the chart given below in your notebook. तो नॉर्थ में कौन से कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज हैं ब्राज़ील के, यहाँ पे मैप में बहुत ही क्लियरली दिखा है. फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, राइट, गुयाना, वेनेजुएला, राइट. सो दिस कंट्रीज आर इन नॉर्थ. इज देयर एनी ओशन टू द नॉर्थ? यस. सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नाउ विल गो टू द वेस्ट. सो विच कंट्रीज आर देयर टू द वेस्ट? Colombia, Peru, right? And in any ocean? No. To the south, which countries are there to the south? Uruguay, Argentina, right? So these countries are to the south. Is there an ocean to the south? Yes, South Atlantic Ocean. Now to the east. Now there is completely ocean to the east, so no countries, only oceans are there. So we'll write Atlantic Ocean. Okay. So after this explanation of map, there is next point, is historical background. India was under the British rule for almost 1.5 century. India got its independence in the year 1947. So कितने साल के लिए इंडिया पे ब्रिटिश रूल था? 150 years. And when India got freedom? In 1947.
Despite facing several problems like 3 wars, famine situations in various parts and similar issues after independence, India is a major developing country of the world. तो कौन से प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस किए इंडिपेंडेंस के पहले भी और बाद में भी? सो देर आर 3 वॉर्स, 3 युद्ध हुए इंडिया में. फेमाइन सिचुएशंस, अकाल पड़ा था इंडिया में बहुत सारे पार्ट में, एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये सब होने के बावजूद इंडिया एक ऐसी कंट्री है, मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. देखो इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना लैंड एक्सटेंशन है, तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट. बहुत सारे देश है जो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बेचना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप. पेस्ड अप मतलब उसका स्पीड बढ़ गया है, गति बढ़ गई है. तो वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से टाइम टू टाइम इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो क्या हो गया है, बढ़ गया है. द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई. एज दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री. देखो तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है, प्रपोर्शन है किसका है, यूथ का है, राइट. इसलिए और हमारे यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा किससे बना हुआ है, यूथ से बना हुआ है. इसलिए इंडिया को कौन सा कंट्री बोला जाता है, यंग कंट्री बोला जाता है, राइट. तो जैसे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा इंडिया का, सेम वे विल लुक द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील. फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्तुगीज रूल. तो देखो जैसे इंडिया पे 150 साल राज था ब्रिटिश का, वैसे ब्राज़ील पे कितने साल था रूल पोर्तुगीज का, 300 ईयर्स. 3 centuries मतलब 300 ईयर्स, राइट. ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंस मिला है, और 1822. फ्रॉम 1930 to 1985, फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट. चलो 300 साल पोर्तुगीज रूल था, और आगे जाके और 50 साल 55 ईयर्स पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट था. तो इसका मतलब पॉपुलिस्ट का मतलब क्या होता है, पॉपुलर मतलब लोगों में जो पॉपुलर है, वो जो अमीर लोग हैं उनका नहीं. तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास जिनको सपोर्ट करता है, उनका गवर्नमेंट यहाँ पे था, राइट. तो इलाइट लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे, उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट. इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century. Brazil is seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. तो 20th century में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया ब्राज़ील ने. जो कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उन्होंने वो ओवरकम कर दिए, और आज ब्राज़ील को कैसे देखा जाता है, अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर. तो देखो ब्राज़ील का पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, लेकिन ब्राज़ील इंडिया से बहुत बड़ा है. तो फ्यूचर में जो बड़ा मार्केट दिख रहा है वो है ब्राज़ील, राइट. तो राइट हैंड में कुछ क्वेश्चंस भी दिए यहाँ पे. शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3. तो एक मैप आपको दिखाया गया यहाँ पे, उस मैप में कुछ चीज़ें आपको बोला गया है कि दिखाओ, राइट. ऑलरेडी 2 पैरेलल यहाँ पे दिखाए गए हैं, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. तो ये क्या है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट. तो और क्या पूछा गया हमें दिखाने के लिए, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो हमें पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने, और ओशंस के भी नाम लिखने, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, राइट. कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम. तो ये इंडिया और ब्राज़ील के मैप को कलर करना है और उसको नाम लिखना है. ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज. तो इक्वेटर मैंने पहले शुरुआत में बोला था कि जो मिडल लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, और उसका जो मेजरमेंट है वैल्यू कितना है, 0 डिग्री. शो द सिंबल फॉर डायरेक्शन. तो देखो मैप में सिंबल दिखाना पड़ता है. अभी इसी टेक्स्ट बुक में अगर आप पेज नंबर 20 देखोगे तो ब्राज़ील का मैप दिखाया गया है वहाँ पे, और वो डायरेक्शन दिखा है एन, ऐसा एरो दिखाया गया है, और वहाँ पे एन लिखा है. एन का मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन. और हमारे पास अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो बाकी तीनों भी हमें मिल जाती है. जैसे कि हमारे लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है, राइट, और राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, और पीछे के साइड में साउथ, राइट. सो 1 डायरेक्शन इज इनफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड. तो अभी अभी हमने 2 कंट्रीज स्टडी किए, उसके बारे में क्या क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम. आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज. तो अभी अभी मैप पे 2 कंट्री कलर किए आपने, तो उसमें से बड़ा कंट्री कौन सा है, नेचुरली ब्राज़ील है. विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट.
तो लैटिट्यूड किसका बड़ा है? देखो इंडिया का क्या था, 8 डिग्री से लेके कहाँ तक था, 36 डिग्री। और ब्राज़ील का कहाँ से है, राइट? तो ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन है, जो शुरुआत होता है 33 डिग्री से लेके ऊपर 5 डिग्री तक, राइट? सो latitudinal extension of Brazil is more compared to India. How do the locations of Brazil and India differ in terms of their positions in their respective continents? तो जिस कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्री है तो उनका पोजीशन डिफर करता है, अलग है क्या? तो हाँ, एशिया में इंडिया कौन से डायरेक्शन में है, सदर्न पार्ट में है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील कौन से पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में। सो दिस इज द डिफरेंस। हाउ मेनी स्टेट्स डज ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैव? तो कितने स्टेट्स है ब्राज़ील में और इंडिया में? तो देखो इंडिया में पिछले साल तक हम बोलते थे कि 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन अभी वो चेंज हो गया है। अभी इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 2 नए यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, राइट? तो आप बोलोगे सर आपने तो 2 यूनियन टेरिटरीज बोली और पहले 7 बोला, तो 9 होना चाहिए ना। नहीं, तो हमारे और एक यूनियन टेरिटरी है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली है और दमन एंड दीव, ये दोनों अलग थे, अभी उनको एक साथ बनाया गया है। अभी वो एक ही यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है एंड 28 स्टेट्स। तो वैसे ब्राज़ील में कितने स्टेट्स है? तो ब्राज़ील में 26 स्टेट्स है, राइट? ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ दिस कंट्रीज इन योर नोटबुक। तो ऑलरेडी दिए ये फ्लैग्स, उसको ड्रॉ करो। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्ब्लेम्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो जो राष्ट्रीय सिंबल है, चिन्ह है, उसको हमें ढूंढना है। तो इंडिया का हमें पता है सत्यमेव जयते, राइट? वैसे ब्राज़ील का कौन सा है वो हमें ढूंढना है, राइट? चलो ठीक है, तो इंटरनेट पे हम ढूंढ लेंगे। गिव इट अ ट्राई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। तो स्वतंत्र होने के बाद दोनों कंट्री में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे पूछा गया है, राइट? तो जैसे एक डिफरेंस तो हमें मिलता है कि ब्राज़ील में कौन सा गवर्नमेंट था, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, राइट? ठीक है। द इंपीरियल पावर विच रूल्ड ब्राज़ील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। फाइंड आउट व्हेन दैट पार्ट ऑफ इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो ब्राज़ील में कौन रूल करता था 300 ईयर्स के लिए? पोर्तुगीज़। तो क्या इंडिया में भी पोर्तुगीज़ ने रूल किया है क्या? यस, कुछ पार्ट है जिसके ऊपर पोर्तुगीज़ लोगों ने रूल किया, और वो कौन सा है? गोवा है, राइट? दीव दमन, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली। तो ये 3 पार्ट है जहाँ पे पोर्तुगीज़ लोगों ने रूल किया है। और देखो 1947 को फ्री नहीं हुआ है, वो फ्री हुए 1960 में। कुछ पार्ट 1960 में, कुछ पार्ट 1962 में, सबसे लास्ट में गोवा फ्री हुआ है। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15, whereas Brazil celebrates her independence day on September 7. India has federal parliamentary republic type of government, whereas Brazil has federal presidential republic type of government. तो देखो इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप, और ब्राज़ील में फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप। तो पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? उसका जो हेड है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो उस कंट्री को चलाता है। और प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप में क्या होता है? उनका जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो प्रमुख होता है, वो कंट्री को चलाता है। दैट इज द डिफरेंस। द नेम ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाओ ब्रासिल, अ लोकल वुडेड ट्री। तो ब्राज़ील कंट्री का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा है? तो वहाँ का जो लोकल ट्री है, क्या नाम है उस ट्री का? पाओ ब्रासिल। उसके वजह से इस कंट्री का नाम ब्राज़ील पड़ा हुआ है। तो हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। आर द सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? रीराइट द रॉन्ग वंस। तो जो गलत है वो वापस लिखना है हमें। ब्राज़ील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सो दिस इज करेक्ट, राइट? थोड़ा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो ये गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें सिर्फ हमें एक वर्ड निकालना है, लेस, और उस वहाँ पे डालना है मोर, राइट? सो द सेंटेंस क्या हो जाएगा? द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज मोर देन इंडिया। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, करेक्ट, दिस इज द राइट सेंटेंस। ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन। तो ये गलत है, हमने मैप में देखा कि कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत है। पाकिस्तान हमारे इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट में है, राइट? द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो ये सही है। हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको क्या बोलते हैं हम? पेनिनसुला बोलते हैं, राइट? तो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए, आंसर इन ब्रीफ। What problems did Brazil and India face after independence? Second question, how are Brazil and India different from each other in terms of location? तो ये longitudinal
एंड लैटिट्यूडल एक्सटेंशन यहाँ पे लिखना है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा. डिस्क्राइब द लैटिट्यूडल एंड लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. सो यहाँ पे अगेन वो आंसर रिपीट करना है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट. ये ऑलरेडी हमने देखा है. दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील. तो कौन से दो कंट्री है जो बॉर्डर में नहीं दिखते ब्राज़ील के? चिली इक्वेडोर, अर्जेंटीना बोलिविया, कोलंबिया फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम उरुग्वे. तो देखो मुझे लगता है कि जो पहला है चिली एंड इक्वेडोर ये आंसर है, क्योंकि बाकी कंट्री तो हमने जब मैप स्टडी किया तो दिख रहा था, राइट. बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो कौन सा गवर्नमेंट है दोनों कंट्री में? रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, राइट. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. डी. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील करेक्टली. तो ब्राज़ील का मैप देखा हमने, कोस्टल पार्ट कौन सा है? तो पहला ही दिख रहा है, देखो उसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया करेक्टली. तो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है सदर्न, दैट इज थर्ड आंसर, राइट. कंसिडरिंग हेमिस्फेयर, विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फेयर इन विच इंडिया लाइज. तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में? देखो अगर हमने ये पहला लिया तो ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, दूसरा लिया सदर्न हेमिस्फेयर, तीसरा लिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, चौथा लिया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट. तो हम यहाँ पे आंसर क्या लेंगे? दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. एक्चुअली फर्स्ट भी लेना चाहिए, राइट, लेकिन वो एस और एन लिखा है वहाँ पे, तो हाँ वो भी करेक्ट आंसर है. एंड थर्ड वाला एन नॉर्थ, वो भी करेक्ट आंसर है, राइट. कंसिडरिंग द हेमिस्फेयर, विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फेयर इन विच ब्राज़ील मेनली लाइज. तो ब्राज़ील कौन से हेमिस्फेयर में है? तो ये पहला आंसर भी करेक्ट है, साउथ टू नॉर्थ फर्स्ट, एंड सेकेंड वो भी करेक्ट है सदर्न हेमिस्फेयर में, राइट. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के दो आंसर आने चाहिए. ओके, सो दिस एक्सरसाइज वी हैव डिक्लेयर्ड. Discuss next time. We will see the third chapter, right? So till then you take care and watch my video, subscribe my channel. Thank you very much. Stay tuned.